Well girls, video 3 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Unit number 11, noise in the environment, माहौल में शोर. Page 120, activity G is there. Read the following sentences and tick the right adverbial clause given in bracket. Okay, before solving this activity, before doing this activity, we have to understand what are the adverbial clauses and what are the types of these clauses. Okay, adverbial clauses. What is the adverbial clause? We have already discussed. Adverbial clause is a group of words that function as an adverb. Okay, that function as an adverb, contains a subject and a verb. Cannot stand alone as a sentence. Okay, we have discussed at page 18, girls. We have already discussed that adverbial clause always starts from subordinating conjunction. It is not a complete sentence, it has no complete thought, it is a part of the sentence and it is always a dependent clause. Okay, and it explains the verb, it explains the action. I will, example is there, I'll bury the treasure where the crocodile live. First of all, let's see, this is the subordinating conjunction, and as I told you that adverbial clause always starts with the subordinating conjunction. So where is the subordinating conjunction? Where the crocodile live. The crocodile is subject, live is the verb. Subject and verb both are there, but still this is the dependent clause. It is not a complete sentence. It doesn't have a complete thought. It cannot stand alone. Okay, it's a dependent clause. Adverb clause is always dependent clause. But it answers certain questions. Where, when, how, to what extent. Okay, these are the questions that are answered through adverbial clause. And because it is explaining the verb, okay, how the action is done, where the action is done, to what extent the action is done, what was the reason. Okay, so in this sentence, where the crocodile live, I'll bury the treasure. So this is explaining the, or it is modifying the act bury. Okay, it is modifying the verb will bury. Okay, through the dependent clause where the crocodile live. Well girls, let's discuss the types of the adverbial clause. As I told you that adverbial clause give answers of the certain question as how, when, where, what is the manner, to what extent, all these. So let's discuss the types. First type is time. Ali stood up when the president came. When the president came, explaining time. Place, she studies where I study. Place, ठीक है, जहाँ मैं पढ़ती हूँ वहाँ वो पढ़ती है. ठीक है, इट्स एक्सप्लेनिंग टाइम. मैनर, ट्राई टू फिनिश इट एज शी हैज़ शोन यू. जिस तरह से दिखाया गया है उस तरह से इसे मुकम्मल करें. रीज़न, सिंस यू रिकमेंडेड हिम, चूँकि आपने उससे सिफारिश की थी. आई एम अपॉइंटेड टुडे, ठीक है, मुझे आज मुकर्रर कर दिया गया, मुझे नौकरी दे दी गई. कंडीशन है मशरूत, शर्त होना. वी कैन नॉट गेट फर्स्ट डिवीजन, हम तब तक फर्स्ट डिवीजन नहीं हासिल कर सकते हैं अनलेस वी बर्न मिडनाइट ऑयल, जब तक हम दिन रात मेहनत ना करें. मिडनाइट ऑयल का मतलब ये वो क्या है, उसे कहते हैं प्रोवर्ब है. ठीक है, मिडनाइट ऑयल, जब तक हम दिन रात मेहनत ना करें या अनथक मेहनत ना करें हम तब तक फर्स्ट डिवीजन नहीं ले सकते. ये कंडीशन है, मशरूत है. एक्सटेंट, एज फार एज आई नो. एक्सटेंट, जहाँ तक मैं जानता हूँ. शी इज़ डलर, ठीक है, वो बेवकूफ़ है, वो फुलिश है. कंपेरिजन, शी इज़ प्रिटी एज शी इज़ वाइस, वो जितनी खूबसूरत है उतनी अक्लमंद भी है. कंपैरिजन है ये. ठीक है. इफेक्ट है, रन फास्ट सो दैट यू मे नॉट बी लेट, तेज़ भागे, ऐसा ना हो कि आप ताख़ीर का शिकार हो जाएं, आप लेट हो जाएं. इफेक्ट है ये. असर है. कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या है, मवाजना है. ठीक है. ही इज़ माइजली दो ही इज़ रिच, ठीक है, अगरचे वो अमीर है लेकिन वो कंजूस है. पर्पस, शी वर्क्स हार्ड सो दैट शी मे नॉट गेट स्कॉलरशिप, शी मे गेट स्कॉलरशिप. ठीक है, वो मेहनत करती है ताकि वो स्कॉलरशिप ले सके. उसके मेहनत करने का पर्पस क्या है, स्कॉलरशिप लेना. ठीक है. अब बेसिकली हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे वो ये चीज़ें थी. टाइम, प्लेस, मैनर, रीज़न, कंडीशन, एक्सटेंट, कंपैरिजन, इफेक्ट, कंट्रास्ट एंड पर्पस. बेसिकली the points that you study at your level are time, place, manner, reason and to what extent, purpose. ठीक है, ये आप बेसिकली अपने मैट्रिक के निसाब में, मैट्रिक के सिलेबस में पढ़ रहे हैं. ठीक है. इसको जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एडवर्ब आंसर्स दिस क्वेश्चन. वेयर डिड द एक्शन हैपन, वेयर क्या है, प्लेस है. वेयर इज़ प्लेस. ठीक है. व्हेन डिड इट हैपन, टाइम है. हाउ डिड इट हैपन और इन व्हाट वे,
ठीक है, ये मैनर्स हैं. टू व्हाट एक्सटेंट डिड इट हैपन, और ये, और हाउ ऑफन डिड इट हैपन, ये एक्सटेंट है, ये उसका टू व्हाट एक्सटेंट है. ठीक है, बेसिकली टाइम, प्लेस, रीजन, मैनर्स एंड टू व्हाट एक्सटेंट्स, दीज आर डिस्कस्ड इन एडवर्ब और इन एडवर्बियल क्लॉजेज. ठीक है, अब आप समझ चुके हैं, अब हम इसको डिस्कस करते हैं. ठीक है, अब आप सेंटेंस को समझ के खुद ही आई होप बता सकेंगे कि ये मैनर है, प्लेस है, रीज़न है, ये क्या है. ठीक है, द ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन एज असद अराइव्ड. ट्रेन लेफ्ट द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से निकली एज असद अराइव्ड. ठीक है, जैसे ही असद पहुंचा. अब ये क्या है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ क्या होगा, ये प्लेस होगा या टाइम होगा, डेफिनेटली टाइम. ठीक है, ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, कि जिस वक्त असद पहुंचा उस वक्त ट्रेन निकली. दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम. यू कैन पुट इट वेयर एवर यू लाइक, आप जहां चाहें इसे रख सकते हैं. दिस इज क्वाइट ईजी, क्वाइट क्लियर. व्हाट इज इट? ठीक है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है ये, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रीजन है, डेफिनेटली प्लेस. दिस इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस एंड दिस इज टाइम. नेक्स्ट देखिए, आफ्टर द थीफ हैड स्टोलन मनी. आफ्टर द थीफ हैव स्टोलन मनी ही लेफ्ट द होम क्विकली. जब चोर ने रकम चुरा ली तो वो तेज़ी से घर से निकल गया. ठीक है, इस पर गौर करें. अब ये क्या है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम है या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ मैनर है? जब आफ्टर द थीफ, जब चोर ने रकम चुरा ली, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम, डेफिनेटली. ठीक है, नेक्स्ट देखिए. ओके, ही वॉज वेरी प्लीज दैट यू हैव पास्ड. ठीक है, वो बहुत खुश था दैट यू हैव पास्ड, कि आप पास हो गए. ठीक है, क्योंकि आप पास हो गए. अभी क्या है, आपकी उसकी खुशी की रीज़न क्या है, आपका पास होना. ही वॉज वेरी प्लीज दैट यू हैव पास्ड, वो बहुत खुश था क्योंकि आप पास हो गए. तो अब ये क्या है, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न? डेफिनेटली रीज़न. ठीक है, दिस इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीज़न. ओ सॉरी, ठीक है, दिस इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन. एंड नंबर 5, ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड. ही फेल्ड बिकॉज ही हैड नॉट वर्कड हार्ड. उसके फेल होने की रीज़न क्या है, उसकी सख्त मेहनत ना करना. ठीक है, तो अब ये क्या होगा, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन या एडवर्बियल क्लॉज ऑफ प्लेस? डेफिनेटली गर्ल्स, दिस इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन. दिस इज एडवर्बियल क्लॉज ऑफ रीजन. नंबर 1 पे देखिए, एडवर्बियल क्लॉज ऑफ टाइम. Number 2, adverbial clause of place. 3rd, adverbial clause of time. 4th, adverbial clause of reason. And number 5, adverbial clause of reason. Okay, I hope you have understood it. Still, any question, any confusion, you can ask.